extend hearty welcome to our today's resource person, Dr. Praveen Kumar, and all the participants in this webinar on yoga and meditation, a boon for mental stress during COVID-19. Managing committee, principal, faculty, and students. Before I introduce our today's resource person, I would like to share that our college has been a leading institution imparting women education in the backward area of Punjab for the last 50 years. The webinar is dedicated to the Golden Jubilee celebration of the college. Here, I would like to appreciate our college principal, Madam Jagmoni Gaba's initiative and inspiration to organize this webinar. As you all know, the theme of the webinar is that yoga comes as a blessing for mental stress. Let's talk about stress. Though it is a part of our daily life, but the type of hard times we had during past 3-4 months, that was perhaps tough for us all. COVID-19 comes as a blow to disturb our social lives. Lockdown is the world's biggest psychological experiment that we have been paying the price. On one hand, the pandemic of corona, and on the other hand, secondary epidemic of stress. COVID-19 being a deadly and contagious one. We were all asked to maintain social distancing, physical distancing in fact, to fight with it. It is the best thing we can do right now to decrease the risk of spreading the virus. Dear friends, it is mandatory, but it is difficult to be in isolation. We are all social beings, and physical and social distancing being quite stressful for many of us. Times gave extreme depression. We were all weighed down by the work from home type pressure, family, external domestic help, and equally important was the worry for immunity. Building strong immunity remains the key focus. We are facing one of the worst pandemics. Many people resorting to yoga to manage the crisis of stress. It is rightly said that yoga is a holistic approach with a noble and long-term impact on our overall health, especially psychological strength. Today, we have our eminent speaker in yoga is Professor Dr. Praveen Kumar, presently working as head, School of Humanities and Physical Education, CTE University, Ludhiana. He is also rendering his services as Controller of Examination of CTE University. He has been University Board Medalist of BPH. Dr. Praveen has supervised 4 PhD and 24 MPhil students. At presently, 8 PhD scholars are working under his supervision. He has to his credit publication of 30 research papers in national and international journals and also attended more than 40 seminars and workshops. He has also been a member of Board of Studies of different universities. Dr. Praveen is a lifetime member of journals like AIAER and IJMESS. I take pride in sharing with you, Dr. Praveen is a lifetime member of editorial board of the journal IJEAES, published by Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior, Northeast Center. Now I request Dr. Praveen Kumar, sir, to come and join us. Over to you, sir. Good morning, everyone. मेरी रिक्वेस्ट है कि जो और लोग प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंटेशन में, आप प्लीज उसको प्रेजेंट ना करें, अदरवाइज मेरी स्क्रीन जो है आपको विजिबल नहीं होगी. थैंक यू.
तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का ये सेशन शुरू करने से पहले हम अपनी परंपराओं के अनुसार सर्वप्रथम हम प्रार्थना करेंगे और उसके पश्चात हम आज का सेशन शुरू करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु Koshik sir, please unmute Praveen sir. Koshik sir, please unmute Praveen sir. Sir, we are not able to hear you clearly, sir. Praveen sir, please unmute your mic. It's now. Yes, sir. Yes, now. It's audible, sir. Now it's audible, sir. तो सबसे पहले आज का ये सेशन शुरू करते हैं। हमने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे भगवान, हम सबको एक साथ मिलकर रहने का ज्ञान दें, हम सभी तेजस्वी बने, हम सभी ज्ञानवान बने और इस संसार के अंदर सभी जगह सुख हो, शांति हो। इसका हम परमात्मा से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है, करते हैं। और अब हम आज का अपना सेशन प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में स्ट्रेस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। हर जगह, हर स्थान पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी रूप में स्ट्रेस से पीड़ित है। हम सभी भी अपने जीवन में अगर हम देखें, अपने जीवन के 24 घंटों को भी अगर हम निकाल करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस के अंदर जी रहे हैं। कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता है जिसके कारण कि हमें स्ट्रेस होता है। इन चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में स्ट्रेस है क्या। हम प्रयास करेंगे जानने की कि योग क्या है, और ये भी कोशिश करेंगे कि योग की वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, वो कौन कौन से साधन है, मार्ग है, जिनका अगर हम अनुसरण करें तो हम अपने आप को, स्वयं को स्ट्रेस से बचा सकते हैं। इस चीज को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि हम सभी योग के विषय में जानते हैं कि योग भारत की एक प्राचीन परंपरा है। इसका जन्म भारत में ही हुआ था। और अगर हम महर्षि पतंजलि को समझने का प्रयास करें तो महर्षि पतंजलि ने योग को एक अनुशासन माना है। योग सूत्र, जिसके बारे में अगर हम योग के बारे में जानते हैं तो जानते होंगे कि योग सूत्र एक महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसके अंदर महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा, योग का ज्ञान देने का प्रयास किया था। एक बार पुनः मेरी प्रार्थना है उन लोगों से, मिस्टर हरबंस कौर, आप प्लीज प्रेजेंट ना करें अपने आप को। यदि आप प्रेजेंट करेंगे तो स्क्रीन डिस्टर्ब होती है, तो प्लीज। और नैयर से मेरा रिक्वेस्ट है कि बाकी सबकी प्रेजेंटेशन को कैंसिल कर दिया जाए। तो जब हम उस परिभाषा में अगर हम योग सूत्र को देखें तो पहला योग सूत्र का श्लोक ही है कि अब योगा अनुशासन, अर्थात अब हम योग रूपी अनुशासन का प्रारंभ करते हैं। तो योग को एक अनुशासन माना है, इसीलिए कहा गया है कि योग एक जीवन जीने की कला है। और उस कला के लिए उन्होंने कहा कि योग क्या है, उनकी परिभाषा कहती है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात अपने मन, अपने चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण ही योग है। योग ये मानता है कि जब तक हमारे मन के अंदर विचार शून्य नहीं हो जाते, हम जब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलती है, जब तक हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने विचारों को, भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, तब तक हम अपने आप को, अपने मन को, अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने कहा कि योग क्या है
चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण ही योग है। अब चित्त क्या है, इसको अगर हम समझना का चाहें तो हम कह सकते हैं कि चित्त मन की एक अवस्था होती है। मन की अवस्था का अर्थ होता है कि जिसमें हमारा मन गमन करता रहता है। तो इन अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं, बहुत प्रकार के भाव हमारे मन में जागृत होते हैं, और ये भाव कहीं ना कहीं हमें इधर से उधर हमारे मन को अशांत करने का प्रयास करते हैं। जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, और मन को नियंत्रित करके, चित्त को नियंत्रित करके मन को एकाग्र बनाते हैं और अपने जीवन में योग के साधन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और इसमें जो है, जो शब्द इसके लिए योग के लिए प्रयोग किया गया, संस्कृत शब्द युज से इसके जो है ये शब्द आया है, इसका अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। परंतु प्रश्न उठता है किस चीज को मिलाना है, तो कहा गया कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन जो है वही योग है। जीवात्मा अर्थात जीवन, जो जीवन हम जी रहे हैं। 84 लाख योनियां मानी गई हैं जीवन की इस संसार के अंदर, जिसमें हम जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं। योग एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त हो सकते हैं। और जिस जीवात्मा का परमात्मा से मिलन की बात कही जाती है, तो हर जीव के अंदर एक आत्मा विराजमान होती है, जिसके कारण ये जीवन चल रहा है, जीवन चैतन्य है। जब उस आत्मा का उस परमपिता परमेश्वर में मिलन होता है, उस परमपिता परमेश्वर के साथ उस आत्मा का विलय हो जाता है, तो ये आत्मा उस परमपिता परमेश्वर का ही एक अंश बन जाती है, और हम उस परमपिता परमेश्वर के अंश के रूप में अपने आप को जानने लगते हैं। जब ये मेरे इस जीवात्मा से जब ये जीव की मुक्ति हो जाती है, जीव की मुक्ति होने से मैं की मुक्ति होती है। अब तक हम अपने आप को मैं में ढूंढ रहे थे कि मैं प्रवीण हूं, आप कोई पायल है, कोई करीम है, कोई सलीम है, कोई परविंदर है, कोई जसविंदर है। अब तक हम अपनी पहचान इस रूप में बना करके चल रहे थे। परंतु जब ये जीव जब आत्मा उस जीव से मुक्त होती है, तो वो परमात्मा परमपिता परमेश्वर का अंश हो जाती है, और यही योग हमारे को इसी मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता है। इस योग के अंदर हम विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाएं करते हैं, जिसको हम आसन भी कहते हैं। इस योग के अंदर हम प्राणायाम करते हैं, जिससे हम अपनी श्वास को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अंदर हम जो है ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, अन्य चीजों का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हम योग में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर मैं महर्षि पतंजलि की बात करूं तो उन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया है, और ये अष्टांग योग कहता है कि इसके 8 है, जिसको कहा जाता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब अगर मैं ये कहूं कि ये जो अष्टांग योग है ये 8 स्टेप है। अगर मुझे कहा जाता है कि अगर मुझे 8वें फ्लोर पे जाना है तो मुझे हर बार एक फ्लोर ऊपर चलना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर मुझे समाधि तक पहुंचना है तो मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को इन अवस्थाओं से निकल करके आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मैं जो है आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ सकूं, समाधि की तरफ बढ़ सकूं। यम के विषय में कहा जाता है कि यम का अर्थ है कि जिससे हमारा मोरल बिहेवियर जो है वो मजबूत होता है। जैसे अब यहाँ पर मैं इन चीजों को जो स्ट्रेस के साथ, तनाव के साथ भी जोड़ने Question, sir. Please unmute Parveen, sir. Question, sir. Please unmute Parveen, sir. Yes, I am audible now. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। प्लीज एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आप को स्क्रीन प्रेजेंट ना करें। ऑर्गेनाइजर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको ब्लॉक करें जो और स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं, इससे डिस्टर्बेंस होती है। Yes, sir. We are doing. Yes, sir. We are doing. हमने कर ली इन लोगों को ऑलरेडी। तो हम बात करते हैं कि यम, हमने अष्टांग योग की चर्चा शुरू की, जिसके अंदर हमने कहा कि यम के द्वारा जो है पहला अंग अष्टांग योग का यम है।
जिसके अंदर माना जाता है कि यम के द्वारा हम अपने मॉरल बिहेवियर जो है वो सुदृढ़ कर सकते हैं। और उसके अंदर पहली चीज है अहिंसा, अर्थात मन वचन और कर्म से किसी प्रकार की हिंसा न करना अहिंसा। अब यहाँ पर अगर मैं कहूं कि स्ट्रेस की अगर शुरुआत होती है, तनाव की शुरुआत होती है, तो यहां से एक प्रारंभ मान सकते हैं। मीन्स मैंने कहा मन वचन और कर्म से, मन मीन्स मेरे अंदर किसी के प्रति हिंसा का भाव जागृत ना होना। जब हम किसी को देखते हैं, किसी के प्रति हम गुस्सा करते हैं, किसी को देख करके हमारे मन में दुर्व्यवहार आता है, तो वो भी कहीं ना कहीं हिंसा है और कहीं ना कहीं वहीं से तनाव की शुरुआत हो जाती है। हमारे वचन, जब हम किसी को जोर से बोलते हैं, गलत बोलते हैं, गाली देते हैं, बुरा कहते हैं, वो भी एक प्रकार की हिंसा है और कहीं ना कहीं दूसरा तो उससे प्रभावित होता ही है, हम भी अपने आप, हम भी कहीं ना कहीं उस चीज से प्रभावित होते हैं। मन वचन और कर्म, जब हम हमारा कोई एक्शन ऐसा होता है जिससे किसी को दुख पहुंचता है, तो वो भी कहीं ना कहीं तनाव का कारण होता है। झूठ सत्य की बात की जाती है, ट्रूथफुलनेस की बात की जाती है कि मन वचन कर्म से सदा सत्य बोलना चाहिए, इससे भी हम जो है तनाव मुक्त हो सकते हैं। अस्ते अर्थात चोरी ना करना, चोरी से हमेशा मन में तनाव होता है। मन वचन कर्म से चोरी ना करना, अगर हम किसी प्रकार की चोरी करते हैं तो हमारे अंदर डर होगा और डर पैदा होने से तनाव का प्रारंभ होता है। ब्रह्मचर्य के, अपने सेलिबेसी के नियमों का पालन हमें करना चाहिए ताकि ये भी हमारे जीवन में आगे बढ़ने में। और अपरिग्रह मीन्स अनावश्यक चीजों का संग्रह न करना। अभी आपने पीछे देखा होगा कि जब पैंडेमिक की कंडीशन चल रही है, तो लोगों ने क्या किया कि चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि पता नहीं, उनको चिंता थी कि पता नहीं 15 दिन बाद कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके कारण क्या हुआ कि समाज के अंदर चीजों का रेट जो है, सोसाइटी के अंदर, मार्केट में चीजों के रेट बढ़ने शुरू हो गए और वो कहीं ना कहीं एक तनाव का कारण बनता गया, क्योंकि जितना हम इकट्ठा करते जाते हैं, चीजों का संग्रह करने जाते हैं, उतना ही हमें उसके प्रति चिंता भी होती है कि हमने इकट्ठा तो कर लिया, कहीं ये खराब तो नहीं हो जाएगा, कल ऐसा तो नहीं कि मार्केट के अंदर रेट कम हो जाएंगे तो मेरा सामान इकट्ठा किया हुआ खराब। तो कहीं ना कहीं योग हमें, यम हमें इन चीजों के बारे में समझाने का प्रयास करता है, जिसके कारण कि हम आगे जब बढ़े तो हम किसी प्रकार की चिंता मुक्त रहें। नियम के विषय में व्यक्तिगत मोड जो है, बिहेवियर के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर स्वच्छता बनी रहनी चाहिए, हमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, हम जो है तप करते रहें, हम स्वाध्याय करें, स्वयं को जानने का प्रयास करें। जीवन भर हम दूसरों को जानने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं हमें स्वयं को जानने की भी आवश्यकता है कि मैं क्या हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ था, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मुझे यह मनुष्य योनि ही क्यों प्राप्त हुई है। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि माना गया है, सबसे अच्छी। क्यों? क्योंकि मनुष्य को सबसे बुद्धिमान माना गया है और इस संसार के अंदर, और अपनी बुद्धि के द्वारा वह स्वयं की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, इसलिए उसको सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना गया। ईश्वर प्राणी ध्यान की बात की जाती है तो अर्थात परमात्मा को समर्पित करना स्वयं को। हम अगर स्वयं को, जब तक मैं के अंदर रहेंगे तब तक हम जो है हमारे को चिंता रहेगी। जब हम कहेंगे कि परमात्मा सब कुछ है, वही हमें देता है, उसी से हमें मिलेगा। आप सोचिए कि आप सारा दिन काम करके घर में रहते हैं, सब सो जाते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो शाम को निकलते हैं, रात को निकलते हैं और उनको भी भोजन मिलता है। हम सारा दिन काम करके भोजन प्राप्त करते हैं, बहुत से जीव जंतु हैं जो काम नहीं करते मगर उनको भी ईश्वर भोजन देता है। तो अगर हमें ईश्वर पे विश्वास होगा तो हमारे काम सारे सफल होंगे, और जब हम ईश्वर पर विश्वास करके चलते हैं तो हम तनाव से भी मुक्त रहते हैं। इसके बाद आसन आ जाते हैं। आसनों का अभ्यास हमें तनाव मुक्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि आसन करने से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, हमारी हेल्थ बेहतर होती है, हमारा अपने शरीर पर नियंत्रण आता है, हम रोग मुक्त होते हैं, और इन चीजों का से भी कहीं ना कहीं हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। अगली चीज है प्राणायाम। प्राणायाम जो है स्ट्रेस के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा प्राणायाम जो है एक्टिविटी मानी जाती है। प्राणायाम का मतलब प्राण जमा आयाम, अपनी श्वास के ऊपर नियंत्रण पाना। हम सभी जानते हैं कि श्वास हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब तक ये श्वास जीवन में चल रहा है तब तक ही ये जीवन है, उसके पश्चात श्वास के बाद जीवन समाप्त हो जाता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। ये 72,000 नाड़ियों के अंदर हमारे प्राण का संचार चलता है, प्राण जीवन जो संसार चलती रहती है। जब भी कभी इन
चीजों के अंदर जब भी कभी हमारे शरीर में कोई भी परिवर्तन आता है, इमीडिएटली उसका प्रभाव हमारी श्वास के ऊपर आता है। गुस्सा आता है, आप महसूस करना कि आपकी श्वास तेज चलनी शुरू हो जाती है। किसी से लड़ते हैं, तेज श्वास चलने लग जाती है। कभी हम गलत काम कर रहे होते हैं, हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। वही जब भी हम कोई आध्यात्मिक काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसी को दान करते हैं, दया करते हैं, ऐसे कंडीशंस में हमारा मन शांत होता है, अच्छे विचार होते हैं। तो प्राणायाम के 8 प्रकार के प्राणायामों की चर्चा योग में की गई है और उसके द्वारा उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मोर्छा और फलावनी प्राणायाम है, जिसके द्वारा कि हम अपने अपने समय के अनुसार और जरूरत के अनुसार इन प्राणायामों का अभ्यास करके कुछ को नियंत्रित कर सकते हैं। अगली चीज आ जाती है प्रत्याहार, मीन्स कि अपने सेंस ऑर्गन्स के ऊपर नियंत्रण करना। हमारे जीवन में हमेशा जो है हम सुख सुविधाओं के चक्कर में रहते हैं और यही कारण है कि हम बाहर चीजों से सुख ढूंढते हैं मगर बाहरी चीजों से ढूंढते हैं। जब हम प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को इंटरनली करते हैं, अंतर्मुखी करते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे को आगे जो है हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे को जो है सुख और शांति प्रदान करता है। धारणा कहा जाता है कंसंट्रेशन को, जब हम एक चीज में विश्वास करने लग जाते हैं, धारण करते हैं किसी चीज को, एकाग्रता हमारी बनती है, इसको हम धारणा कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे ध्यान का आधार होता है। और उसके पश्चात ध्यान आता है, मेडिटेशन होता है, जो कि जब धारणा मैच्योर हो जाती है तो मेडिटेशन में कन्वर्ट हो जाती है और जब मेडिटेशन कन्वर्ट होता है तो वो ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम अष्टांग योग के माध्यम से स्वयं को तनाव मुक्त करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस क्या चीज है। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो बात कर सके कि द बिहेवियर ऑफ आवर बॉडी एक्सपीरियंस, जब हम कुछ ना कुछ महसूस करते हैं, शरीर में कोई ना कोई परिवर्तन आता है, उसको हम कहीं ना कहीं जब हम उसको नहीं सह पाते हैं तो वो तनाव का कारण बनता है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ, यहाँ पर क्या कि व्हेन यू परसीव a threat of your sympathetic nervous system take over the kick into the fight or flight। जब हम कोई तनाव महसूस करते हैं, जब भी हम कोई ऐसी स्थिति में होते हैं जबकि हमारे को कोई जो दिक्कत महसूस होती है, डर महसूस होता है, तो हमारे जो वहां पर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिव हो जाता है वो, और वो जो है एक डिसीजन लेता है कि मुझे यहाँ पर डटे रहना है या यहाँ से भाग जाना है। और ये जो कंडीशंस होती है कहीं ना कहीं ये हमारे लिए स्ट्रेस का कारण प्रारंभ करती है, क्योंकि अगर हम डटे भी हैं तो भी हमें डर होता है कि कहीं पिट के तो नहीं बाहर आ जाऊंगा, और अगर भागते हैं तभी भी हमारे मन में चिंता होती है कि अगर भाग गए तो कल लोग क्या कहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रारंभ होता है और इसलिए हमें कहीं ना कहीं इन चीजों पर ध्यान रखते हैं। इसके कारण हमारी हार्ट बीट फास्ट होने लग जाती है, मसल में टेंशन बढ़ जाती है, और ये कारण कहीं ना कहीं हमारे को जो है दिक्कत पैदा करते हैं, जो कि हमारे लिए स्ट्रेस का आधार बनते हैं। तो इसके बाद अगर हम कहें तो जो है प्लीज अपना बाकी सबको रिक्वेस्ट करके अपना माइक ऑफ कर दें। अब जब हम इस तरह की कंडीशन के अंदर आ जाते हैं, कंडीशन के अंदर आ जाते हैं, तो हमारे पास जनरली स्ट्रेस को हम दो तरीके से और अगर मैं इसको प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि आप माइक अपना ऑफ कर दें। थैंक यू वेरी मच। तो स्ट्रेस को जनरली हम दो भागों में, अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस के अंदर कहते हैं, परंतु अगर मैं इसको जो है साइकोलॉजी की भाषा में, मेडिकल की भाषा में कहूं तो इसको स्ट्रेस और डिस्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। पॉजिटिव स्ट्रेस एक लेवल तक स्ट्रेस जब हमारे पास होती है, जब हम उसको नियंत्रित जो हमारे है उसको हम पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हम सभी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल है, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, स्टूडेंट है, आपको कल आपका एग्जाम है या कल आपको कोई ऑफिस का काम करना है, तो शाम को आपको होता है कि स्ट्रेस होती है थोड़ी सी पॉजिटिव कि मुझे काम करना है, तो मैं आराम से शाम को बैठ करके काम कर लेता हूं और वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं मेरे अगले दिन को रिलैक्स बना देती है। इसको हम कहते हैं स्ट्रेस या पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं।
जिसके कारण हमारे काम बेहतर होते हैं, हम अच्छा काम कर पाते हैं, खुशी मिलती है इन चीजों से। और जबकि नेगेटिव स्ट्रेस का मतलब है कि जब, जैसे एग्जांपल इसी चीज को मैं कहूं कि मैंने कहा काम मेरे को कल प्रेजेंट करना है और मैं इसको कहूं कि चलो यार आज तो सो लेते हैं, कल सुबह बैठ करके कर लेंगे। सुबह बैठ के करने के हुआ कि पता चला लेट उठे हैं हम, ऑफिस जाने में लेट हो रहा है या स्कूल कॉलेज जाने में लेट हो रहा है, हम जाकर के सोचते हैं कि मैं फटाफट पहुंच के वहां कर लूंगा, उसके कारण हम स्पीड से जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिव कारण बनता है और ये नेगेटिव कारण कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत लंबा जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ज्यादातर डिस्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हम देखते हैं कि जहां पर रिजेक्शंस होती हैं वहां पर डिस्ट्रेस होता है, जहां डिस्टर्बेंस होती है वहां पर डिस्ट्रेस होता है, जहां पर गुस्सा होता है वहां पर डिस्ट्रेस होता है, हमारे किसी नियर एंड डियर की डेथ हो जाती है वहां पर डिस्ट्रेस हमारे को देखने को मिलता है। कहीं जॉब का, जैसे आजकल जो है कोविड के कारण आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है, ये जॉब में भी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज हो रही है कि सैलरी आपको नहीं मिल रही है, आप जॉब में तो हो मगर सैलरी नहीं मिल रही है, अगर मिल रही है तो बहुत कम मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव स्ट्रेस हमारे अंदर पैदा करता है और ये नेगेटिव स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत खतरनाक कंडीशंस होती है। अब अगर मैं इन चीजों को मैंने समझ लिया योग क्या है, मैंने समझने का प्रयास किया कि स्ट्रेस क्या चीज है, अगर हम इन सब चीजों को रोकना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं, तो चार चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण है जो कि हमारे जीवन में इन चीजों को कंट्रोल कर सकती है, जिसको कहा जाता है आचार, विचार, आहार और विहार। चार चीजें हैं। आचार का मतलब राइट कंडक्ट, विचार का मतलब राइट थिंकिंग, आहार का मतलब राइट फूड हैबिट एंड विहार का मतलब राइट डेली रूटीन। अब इन चार चीजों का अगर हम पालन करते हैं तो हम अपने आप को न केवल स्ट्रेस से मुक्त कर सकते हैं बल्कि अपने आप को हम बहुत सारी बीमारियों से, जो साइकोफिजिकल एलिमेंट्स जिसको कहा जाता है या साइकोफिजिकल जो प्रॉब्लम्स हमारी हैं, कहीं ना कहीं हम उन चीजों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। राइट कंडक्ट की, मुझे किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये चीजें अगर मेरा व्यवहार सही होगा तो मेरा जो है मैं अपने आप को तनाव से मुक्त रख सकूंगा। अगर मेरा व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा होगा तो मेरी सोच जो होगी वो भी कहीं ना कहीं बेहतर होगी, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा होगा, जैसा हमारा जो है आचार होता है, जैसे वैसे ही हमारा विचार होता है। हेलो हेलो, हाँ जी, सॉरी सर। सर अगर आप प्रेजेंटेशन शो कर रहे हो तो अभी हमें शो नहीं हो रही है, प्लीज आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है हमें। स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं एक बार दोबारा इसको प्रेजेंट करता हूँ, एक बार डिस्कनेक्ट करके। साबरी गणेश, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन ऑफ करें, अगर आप ऑफ नहीं करेंगे तो मैं प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो प्रेजेंटेशन वाला पोर्शन है आप उसका इस्तेमाल ना करें। I think it's visible now. Yes sir. Yes sir. It is. आप सभी से रिक्वेस्ट है, बार बार मेरी हम्बल सबमिशन है कि एक अपना माइक ऑफ कर दें, दूसरी चीज कि अपना प्रेजेंट ना करें, अदरवाइज इससे डिस्टरबेंस होती है और स्क्रीन मेरी भी जो है वो डिस्प्ले नहीं प्रॉपर हो पाती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा हम लास्ट में जो है उनको हैंडल करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, आप उस टाइम अपना माइक ऑन कर सकते हैं या आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि चार चीजें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा कि हम अपने आप को जो है विभिन्न प्रकार की न केवल तनाव से मुक्त कर सकते हैं बल्कि अन्य से जो हमारी शारीरिक मानसिक बीमारियां होती हैं उनसे भी हम स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। जैसे
आचार विचार आहार और विहार, हमने कैसे किसी के साथ व्यवहार करना है, जिस प्रकार का हमारे विचार होंगे, जैसा हमारी सोच होगी उसी प्रकार का हमारा व्यवहार होगा, जिस प्रकार का हमारा व्यवहार होगा उसी प्रकार का हमें रिस्पॉन्स भी मिलेगा। अब इन चीजों के साथ साथ जो है एक और चीज जो बहुत जरूरी होती है वो होता है हमारा आहार, भोजन। कहते हैं कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जिस प्रकार का हमारा भोजन होगा उसी प्रकार के हमारे विचार होंगे, जिस प्रकार का विचार होगा उसी प्रकार का आचार होगा, और जिस प्रकार का आचार होगा उसी प्रकार का विहार होगा। तो मीन्स कि ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। हमें कहीं ना कहीं स्वयं को जो है इस बात का ध्यान रख करके चलना है कि हमारा आचार बेहतर हो, विचार बेहतर हो, आहार बेहतर हो और हमारा विहार भी बेहतर हो। तो इससे हमें समझना आसान रहेगा। अब हम ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर योग किस प्रकार हमारी सहायता कर सकता है। इस चीज को अगर हम समझने की कोशिश करें तो योग सबसे पहले जो है योग के द्वारा हमारा अपने शरीर पर नियंत्रण आता है। शरीर के नियंत्रण से हमारा अपने मन पर नियंत्रण होता है, मन पर नियंत्रण होने से हमारा अपने विचारों पर नियंत्रण होता है, विचारों पर नियंत्रण होने से भावनाओं पर नियंत्रण होता है, भावनाओं पर नियंत्रण होने से एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता के बढ़ने से हमारा मन जो है वो आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ता है और हम उस ईश्वर परमेश्वर को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखने की कोशिश करें तो हम अपने आप को अच्छा हेल्दी बना सकते हैं। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारे को रोज जो है अगर हम प्रतिदिन आधा घंटा भी अपने लिए लगा पाते हैं योग के माध्यम से या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से हम अपने आप को अगर जोड़ सकें तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को तनाव मुक्त करने में आगे बढ़ सकते हैं। अब रिसर्च की जिससे रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है जो कि ये कहती है कि योग के द्वारा हमारा जो तनाव होता है वो कम होता है, जिसको कि हम प्रयास कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को देखने की कोशिश करूं तो आप देखोगे कि योग के द्वारा आखिर क्या चीज होती है। तो आप देखो कि योग के द्वारा जो है न केवल तनाव कम होता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। योग के द्वारा हमारे को सेंस ऑफ वेल बीइंग का जो है हमारा सेंस जो है वो डेवलप होता है, हमारी एंजाइटी जो है वो रिड्यूस होती है, मसल की टेंशन रिड्यूस होती है, हमारे शरीर में जो है स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारी जो एजिंग है बुढ़ापे की तरफ बढ़ने का जो हमारा रेशो होता है वो भी कम हो। बुढ़ापे का मतलब ये नहीं कि हमारी एज नहीं बढ़ेगी, एज तो बढ़ेगी मगर उस एज में भी हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। दूसरा हमारी बहुत जरूरी है हमें तनाव मुक्त रहने के लिए स्वयं को कि हमारी निद्रा, प्रॉपर स्लीप, साउंड स्लीप होना बहुत जरूरी है। आप ये देख करके चलो कि आज के समय अगर आप यंग हैं तो 6 घंटे और अगर आप थोड़ी एज हैं तो कम से कम 8 घंटे जो है आपको सोना जरूरी है, 6 से 8 घंटे। और इस 6 से 8 घंटे के सोने में भी अगर मैं साउंड स्लीप की बात करूं तो लगभग 1 से 2 घंटे के बीच की हमारी साउंड स्लीप होती है जब हम 6 से 8 घंटे सो रहे होते हैं। तो आप ये मान करके चलो आजकल इसको चेक करने का बहुत अच्छा तरीका आ रखा है, बहुत सारी डिजिटल वॉचेज आ रही हैं जिसके अंदर ये चीज शो होती है कि आपका स्लीप कितने घंटे का था, आपने कितने स्टेप चले हो, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना बर्न हुआ है। आजकल इस तरह की वॉचेज भी अवेलेबल है जिसके अंदर साउंड स्लीप का भी एक कॉलम है कि आपकी साउंड स्लीप कितनी हुई थी, आपकी मॉडरेट स्लीप कितनी हुई थी और कितना देर आप जो है जागे रहे थे या जितनी देर आप जो है कम आप सो पाए हो, वो सारा का सारा चीज जो है इसके अंदर आ जाता है। और इसके द्वारा जो है हमारी मेडिकल कंडीशन जो होती है वो इम्प्रूव होती है। अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम होती है वो चीजें दूर होती है, हमारा हार्ट रेट कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, एनर्जी और जो सिस्टम होते हैं वो भी हमारे कहीं ना कहीं कंट्रोल होते हैं। अब अगर किसी को स्ट्रेस होता है तो क्या सिम्टम्स है, किसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि किसी को तनाव हो रहा है। तो अगर मैं शारीरिक रूप से इसको देखने की कोशिश करूं तो हेडेक, तनाव का एक बड़ा मेजर सिम्टम जो है हेडेक होता है और ये हेडेक बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। दूसरी चीज मसल्स के अंदर टेंशन होती है, पेन होती है, ये चीजें भी हम देखते हैं। थकावट, बार बार हमें हर समय हमें थकावट महसूस होती है। अगर हम इसको देखें जब भी हम तनाव में रहेंगे तो बहुत जल्दी हम थक जाएंगे क्योंकि
हमारे बॉडी के अंदर जो फैटीग हो रही है, ये कहीं ना कहीं रीजन है हमारे तनाव। हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ जाती है, या तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता फूड हमारे को, या तो हमारे को भूख नहीं लगती है, हमारे को ये एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम हमारे को महसूस होती है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वीक होना शुरू हो जाता है जब भी हम स्ट्रेस की कंडीशन होती है। डायबिटीज एक बड़ा कारण है आज के समय में, जब भी हम स्ट्रेस के अंदर रहते हैं उस समय हमारे बैक और नेक में पेन होना एक बड़ा कॉमन है जो आज की डेट में देखा जाता है। ब्लड प्रेशर का हाई होना, हार्ट प्रॉब्लम्स का बढ़ जाना, इम्यून सिस्टम का वीक होने पर अल्सर जैसी प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं तनाव के कारण देखने को मिलती है। अगर मैं माइंड को बात करूं, मूड्स की बात करूं, तो हम देखेंगे कि एंजाइटी बढ़ जाती है, रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है, मोटिवेशन लेवल हमारा कम हो जाता है, फोकस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, बार बार इरिटेशन होती है, इरिटेबिलिटी बढ़ती है, एंगर बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, हमेशा हम सैडनेस के अंदर होते हैं, डिप्रेशन के अंदर स्वयं को महसूस करते हैं। और अगर मैं इसी चीज को व्यवहार के अंदर देखने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि कई स्ट्रेस के अंदर या तो लोग ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं या भूख लगनी बंद हो जाती है। एंग्री जो है वो हमारे को जो है गुस्सा, हमारे को हर चीज के ऊपर हम गुस्सा देखते हैं। कई लोग ड्रग्स, अल्कोहल जैसी चीजों का स्ट्रेस के अंदर इस्तेमाल करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि इस टाइम मेरे को ये इमीडिएटली रिलीफ देगा, मगर धीरे धीरे वो जो है आदत बढ़ती जाती है और रिलीफ की जगह उसके कारण और कई तरह की प्रॉब्लम जो है बढ़ने लग जाती है। कन्फ्लिक्ट, जहां पर हम कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि जहां पर हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मुझे राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, जब हम इस तरह का डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और ये कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं मुझे सोशल विड्रॉल की तरफ ले, कि मैं समाज से कटने की कोशिश करता हूं, और ये चीज का अवस्था कहीं ना कहीं मुझे जो है वो स्ट्रेस की तरफ बढ़ाने में माहिर। अब हमें है कि अगर हमने रिलैक्स होना है, हमें क्या करना चाहिए, ऐसी क्या क्या चीजें करें जिससे कि हमारे को रिलैक्स हो। यहाँ पर मेरा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो वर्क करना शुरू करता है, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम में जो एक्टिविटीज होती हैं उनको बैलेंस करने का काम जो है मेरा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करता है। और जब हम योग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे को दोनों में बैलेंस पैदा करने की कोशिश करते हैं, और ये बैलेंस कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस से जो है मुक्त करने का प्रयास करते हैं। अब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या काम करता है अगर मैं देखूं तो ये हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कम करने का प्रयास करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, डाइजेशन पावर को हमारी बढ़ाता है। और ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं मेरे शरीर को कंट्रोल करने में, शरीर को बैलेंस करने में और हेल्दी करने में हेल्प करती है। अब क्या चीजें करें हम जिसके कारण कि हमारा स्ट्रेस कम होता है। तो कहीं भी आप कोशिश करिए कि गहरे लंबे सांस लेने का प्रयास करें। जब भी मैं अपने आप को स्ट्रेस के अंदर महसूस कर रहा हूं, आप गहरे लंबे सांस लें, सांस छोड़ें, लंबे सांस लें, सांस छोड़ें। तो इस प्रकार भी अगर हम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है, अगर हम इसको ब्रीदिंग करते हैं तो इसके द्वारा हमारे को और कई तरह के बेनिफिट जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब इसकी अगली चीज जो है जिसको कि हम समझने की जरूरत है कि हम प्राणायाम के द्वारा स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर एक प्राणायाम मैंने मेंशन किया, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम स्ट्रेस को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है। इसमें क्या करते हैं कि हम अपने गले को थोड़ा सा जो है कॉन्ट्रैक्ट करके फ्रिक्शनल साउंड, जैसे मैं कहूं इस प्रकार जो है श्वास लेने से भी जो है कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हम उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। हम अपने जो है ब्रीदिंग, काउंट ब्रीदिंग जो है, मीन्स कि लंबा सांस लिया, उसको काउंट किया, फिर अगला सांस लिया, फिर उसको काउंट करते हुए सांस को लेना, सांस को छोड़ना, जिसको कि हम 2-4 ब्रीदिंग का भी नाम देते हैं। इसके अतिरिक्त जो है बेली ब्रीदिंग, मीन्स कि पेट पर हाथ रख करके जो है, चाहे आप ऑफिस में है, जब भी आपको स्ट्रेस महसूस हो, आप पेट के ऊपर हाथ रख के पेट की सांस लेने और छोड़ने के समय पेट की हो रही मूवमेंट्स के ऊपर अगर कंसंट्रेट करने का प्रयास करें तो भी आप अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो है अपने ब्रीदिंग को, जैसे ऑलरेडी लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी सांस छोड़ना, ये भी है। और आजकल जो है जैसे लाफ्टर थेरेपी का यूज किया जाता है। अगर आप
किसी ऐसी जगह पर रहें जहां पर आप खुल के हंस सकते हैं, जोर से हंस सकते हैं, क्योंकि हंसने से हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां जो है वो कहीं ना कहीं खुलती हैं, उन पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों के द्वारा भी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, कि लेफ्ट से सांस लेना, रोकना और फिर राइट से बाहर निकालना, और उसके बाद फिर राइट से लेना और लेफ्ट से बाहर निकालना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है, राइट नोस्ट्रल हमारी सूर्य नाड़ी है और लेफ्ट नोस्ट्रल हमारी चंद्र नाड़ी है। जब हम अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं तो इससे हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस डेवलप होता है, और ये जो नाड़ियां हैं ये कहीं ना कहीं हमारी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने में भी हेल्प करती है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, हमारा स्ट्रेस भी कंट्रोल होता है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कोई ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज भी दूर होती है। रिसर्च इस चीज को प्रूव कर चुका है। आज भी आप जाओ, पीजीआई में जाओ, एम्स के अंदर जाओ या बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओ, वहां पर योगा थेरेपी सेंटर्स हैं जहां पर कि हार्ट के पेशेंट को, जो स्ट्रेस के पेशेंट्स होते हैं या और डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, उनको एडवाइस किया जाता है कि आप जाकर के योगा का जो है मॉर्निंग इवनिंग में आप योग करें जाकर के। इसके अतिरिक्त डिफरेंट आसन है, कोई भी आसन, मैं आपको यहाँ पर स्पेसिफिक जानने की जरूरत नहीं है स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। कोई भी आसन अगर आप शांतियता के साथ करते हैं, कामनेस के साथ करते हैं, कूल माइंड के साथ करते हैं, तो हर प्रकार वो हेल्पफुल है। और आज की डेट में आसन जरूरी नहीं है कि आप आसन जो है अगर आपको आते हैं, आप कई तरह के आसन के अंदर मॉडिफिकेशन, इवन कि आप चेयर के ऊपर बैठ करके ऑफिस के अंदर भी बहुत सारे आसन कर सकते हैं, पर उसको करना अपने समय कंडीशंस को देख करके करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ आसनों का जो है पोज शो करने की कोशिश की है कि कैसे भी आप करें आप। मेन चीज है कि जब आप करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, आसन करेंगे, तो इससे जो है आपको जो है काफी हेल्प मिलेगी। ये जो चीज मैं आपको यहाँ पर जो ट्विस्टिंग, इसको जो है ये आसन अगर आप देख रहे हैं तो ये चीजें बहुत पूरी बॉडी को ट्विस्ट करती है, पूरी बॉडी रिलैक्स होती है। और स्पेशली जिन लोगों को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जो कि हमारे लंबर रीजन के अंदर पेन की प्रॉब्लम होती है, अगर इसको प्रॉपरली किया जाए तो उससे भी रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो है पवन मुक्त आसन है, जिसको शव आसन है। इसके अतिरिक्त जो है और जो चीजें एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, जैसे पाम और हाथ जो है आपका फोरहेड, हाथ को रगड़े, आंखों के साथ लगा करके रिलैक्स कर सकते हैं। आईज वगैरह की स्टिचिंग, ईयर की जो स्ट्रेचिंग वगैरह करें, इससे आपको जो है रिलैक्सेशन मिल सकती है। शोल्डर्स की ओपनिंग करें, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने ऑफिस में बैठ कर भी कर सकते हैं। अगर आप ये चीजें करते हैं तो आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। गोमुख आसन जो आपका आर्म्स के है, इधर हाथ को मूव करें, ये चीजें हैं। नेक की स्ट्रेचिंग जो है, ऐसी चीजें आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको कि आप कर सकते हैं। और स्ट्रेस को रिड्यूस करने का एक और बहुत अच्छा जो है सिस्टम है, वो है क्लैपिंग। अगर आप ताली बजाते हैं, क्लैपिंग करें, हर तरीके से क्लैपिंग, राइट लेफ्ट ऊपर क्लैपिंग। क्लैपिंग जो है प्रूव कर चुके हैं, रिसर्च प्रूव करती है कि क्लैपिंग के द्वारा आप अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि आप नेक को रोल करो, शोल्डर्स को करो, ऐसी चीजें तो आप ऑफिस में भी जब स्ट्रेस में हो तभी भी आप इन चीजों का प्रयास करके कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि अगर हम योग करते हैं, डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो हम अपने आप को तनाव से मुक्त कर सकते हैं। और एक और चीज जो है मेडिटेशन जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। और उसके लिए मेडिटेशन करने के लिए आप कैंडल मेडिटेशन कर सकते हैं, कि जिसको कि हम त्राटक क्रिया, वैसे तो वो क्रिया है मगर हम उसको मेडिटेशन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं कि आप किसी कैंडल को जला करके लगातार उसको देखने की कोशिश करें, इससे भी एकाग्रता बढ़ती है। किसी मंत्र का उच्चारण, मंत्र का म्यूजिक लगा करके आप उससे भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपने गुरु परमात्मा ईश्वर जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, उनकी मूर्ति को सामने रख करके उनको ध्यान केंद्रित करते हुए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपने चक्रों पर ध्यान केंद्रित करके मेडिटेशन कर सकते हैं। आपके पास जो है मंत्र म्यूजिक, कोई बहुत अच्छा स्मूथिंग म्यूजिक है, उसको आप जो है लगा करके, म्यूजिक लगा करके आंखें बंद करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके द्वारा कि हम
अपने आप को जो है स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज इसके लिए जरूरी है कि मैं जो है उसके लिए खुद में तैयार होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर यह चीज हो चुकी है कि हम स्ट्रेस को बुलाते हैं, स्ट्रेस हमारे पास कम आती है मगर हम स्ट्रेस को इनवाइट करने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मेरी वेलबींग अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, तो ये सारी चीजें मेरे से स्वयं ही दूर रहा करेंगी और इसके द्वारा हम अपने आप को कहीं ना कहीं जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि योग युक्त जीवन जो होता है वो हमें रोग मुक्त जीवन की तरफ लेकर के जाता है। तो हम सभी मिलकर के जो है अपने जीवन में योग अपनाएं और रोगों से मुक्ति पाएं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने कीमती समय दिया। Thank you, sir. Sir, there is some queries. First is Mr. Avinash Kumar. Which asana is king of yoga? Which asana is the king of yoga? Which आसन? The king of yoga. मैम वॉइस थोड़ी सी कट रही है, क्या आप इसको चैट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, मुझे पढ़ना इजी रहेगा। सर चैट बॉक्स में ही है ये। Which yoga? Which asana हाँ is king of the yoga? राजा कौन है, योग का राजा कौन है? योग शीर्षासन को जो है योग का राजा माना जाता है, शीर्षासन को। परंतु शीर्षासन हर व्यक्ति नहीं कर सकता, इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार हर व्यक्ति राजा नहीं हो सकता है, उसी प्रकार हर आदमी शीर्षासन भी नहीं कर सकता है, क्योंकि शीर्षासन को करते हुए हमें बहुत सारे प्रिकॉशन, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। और शीर्षासन अगर आप सीख रहे हैं तो मेरी एडवाइस है कि किसी योग विशेषज्ञ की देख रेख में ही योग का अभ्यास, आसनों का अभ्यास करें। वैसे तो योग का अभ्यास भी जो है कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी विशेषज्ञ से प्रारंभ में सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हमने सही तरीके से सीख करके नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो इसलिए मेरी सभी से सबमिशन है कि योग को योग की तरह ही समझें, योग की तरह ही करें और कहीं ना कहीं अच्छी तरह सीख करके राइट वे में करें, ताकि हम उसका फायदा उठा सकें, उसके कारण हमें कोई नुकसान ना हो सके। तो शीर्षासन को जो है ये आसनों का राजा माना जाता है। नेक्स्ट वन इज सर, what's the main or most important part of total yoga system for increasing or improving our mental power? सुभजीत लहरी। मेंटल पावर्स को देखा जाए तो जो हमारी बॉडी है वो शरीर और मन दोनों को अगर हम अलग अलग लेकर के चलेंगे तो शायद हम अपने आप को योग से नहीं जोड़ पाएंगे। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं यम नियम का अभ्यास नहीं करूंगा तो मेरे लिए आसनों में जो है परफेक्शन लाना बड़ा मुश्किल है। आसन में परफेक्शन नहीं लाऊंगा तो मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकूंगा। बॉडी मेरी कंट्रोल में नहीं होगी तो मैं प्राणायाम प्रॉपर नहीं कर सकता। प्राणायाम से जो अगर मैंने अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल नहीं किया, मन पे कंट्रोल नहीं किया, तो मैं प्रत्याहार के द्वारा सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये सभी चीजें इंटर रिलेटेड है। पर क्योंकि आज हम मॉडर्न टाइम में है, हमारे को जो है टू दी पॉइंट सोल्यूशन चाहिए होता है। तो फिर भी अगर हम मेंटल पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो शीर्षासन जैसी चीजें बढ़ा लें, मगर प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इन चीजों के द्वारा हम अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, मेंटल पावर को बढ़ा सकते हैं। मगर हमें ध्यान वही रखना है कि हम इनको प्रॉपर तरीके से कर सकें। सर थर्ड वन इज हाउ टू ओवरकम अग्रेशन। अग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए मैंने पहले ही बताया कि अगर हम प्राणायाम जो है दैट इज द बेस्ट मेथड टू कंट्रोल एग्रेशन, क्योंकि प्राणायाम के द्वारा श्वास पर नियंत्रण होता है, श्वास से हमारा मन पर नियंत्रण होता है, और मन जो ये अग्रेशन है, एंजाइटी है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम अग्रेशन को कंट्रोल करने में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। और ये जो बात करते हैं कि एंजाइटी एग्रेशन की जो बात करते हैं, अगर हम इसको बहुत फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की मूवमेंट होती है जिनके द्वारा कि हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने एक सेकंड के लिए अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया तो आप देखोगे कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। जितनी ये साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, जरा सा एक सेकंड के लिए अपने आप को डाइवर्ट करने की जरूरत है, आप बहुत सारी प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज का हेल्प मिल सकती है। Thank you, sir. It was really very informative session. Sir has explained in detail that yoga is a cure for many health hazards
and how Ashtanga Yoga help us to improving focus and increase our inner strength. Before I hand over to Madam Principal, I would like to thank our management, principal, all faculty members for their major contribution in making this event a great success. My special thanks to Dr. Madhu Sharma, Madam Kamaljeet Kaur, Dr. Jyoti, Mr. Gurdeep Singh, and Mr. Koshan. Now I request our college principal, Madam Jagmoni Kapar, for a vote of thanks. Over to you, ma'am. Hello. Am I audible? Yes, ma'am, yes, you are audible. ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯੋਗਾ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ, ਯੋਗ ਰੱਖੇ ਨਿਰੋਗ। ਯੋਗ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਦਾਰਸ਼ਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਪੂਲਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਡ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਟੂ ਫਾਸਟ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਟੂ ਫਾਸਟ, ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਡੂ ਯੋਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਜਾਂ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਆਈਡੀਆ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਯੋਗਾ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ, ਲੰਬਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ 19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੱਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਤੱਕ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਾ ਸਕੇ ਹਾਂ।
ਡਾਕਟਰ ਪਾਇਲ ਸੱਭਲਵਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਆਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। I am really thankful to you, personally thankful to you। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। Again, thanks to all of you. Thank you very much. Thank you, Dr. Payal Sabharwal. Thank you, Dr. Parveen ji. Thank you very much. थैंक यू मैडम, थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू। फीडबैक फॉर्म जो है वो चैट बॉक्स में डाला गया है, प्लीज फीडबैक फॉर्म फिल कीजिए। उसके बाद ही आपको ई सर्टिफिकेट जो है वो विद इन 5 और 7 डेज जो है इशू हो जाएगा। थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।